आज आप लोग अपने स्क्रीन के पीछे बैठकर आगरा, वृंदावन और मथुरा को एक नेक्स्ट लेवल से एक्सप्लोर करेंगे। So hey everyone, myself Aditya Verma and today's our journey start at 3 pm because we have to take the train at 5 pm. Our journey start from Gorakhpur and it will go Agra. As you seen, we just reached the railway station and we catch the train at 5 pm. Our train departs from Gorakhpur at 5:15 and we are moving towards Agra. When I was in train, I was extremely excited for the trip to visit new places to learn many things. Here is the next morning. We are moving toward Agra slowly. As the destination place comes closer and closer, my patience level goes off. And in this clip, I slapping my sister. This is what we waiting for. We just reached the Agra railway station. And we click many pictures there as for memory. And in this clip you can see the Agra railway station. That time when we reached the railway station, the atmosphere of the station is very cold. When I see this, me just hit that my trip is on. After reaching Agra, my father booked a hotel. We just check in and it's time to fresh up ourselves. After bath and taking the first meal of the day, we just went for Agra Fort. And this is my final outfit for today. And this is the hotel where we stay for today. और आज का हम लोग का पहला डेस्टिनेशन होने वाला है आगरा फोर्ट। एंड दिस इज व्हाट वी केम फॉर। भाई इसको देखने के बाद लग रहा था भाई हाउ इट इज़ पॉसिबल, मतलब भाई इसको कैसे ही लोगों ने उस समय 1526 के बाद कैसे बनाया होगा। And me just walking and seeing all the artworks very precisely. When I was in Agra Fort, I took all the clips and thought when I go back to home I will overvoice it and upload on my YouTube channel. And this time when I overvoicing this video, I have no word that how I describe this beautiful fort. तुम ही लोग देखो भाई मैं इसको क्या ही बोलूँ। जब मैं वहाँ सभी रास्तों से चल रहा था तो उस समय एक मेरे मन में एक ख्याल आया कि इस समय हम लोग तो अभी घूम रहे हैं, ठीक है, पर जब ये बना होगा तो उस समय तो वहाँ के राजा महाराजा होंगे, जो मुगल्स का एक्चुअली ये है, तो जो बाबर तो मेरे ख्याल से नहीं रहा होगा इसमें, जैसे हुमायूं होगा, अकबर होगा, जहांगीर होगा, शाहजहाँ होगा, तो मतलब इस सेम रास्ते से वो भी लोग चलते होंगे। मतलब हम लोग तो अभी एज अ नॉर्मल सिटीज़न चल रहे हैं, बट उन सब का तो खुद का प्रॉपर्टी था भाई। वो लोग किस तरह चलते होंगे, मतलब हर डोर से जैसे मैं निकल रहा था तो मैं सोचता हूँ कि मैं उस समय सोच रहा था कि भाई यहाँ से वो भी लोग निकलते होंगे, उन लोग को क्या सोचते होंगे, मतलब ये एकदम हिट कर रहा था, नेक्स्ट लेवल से हिट कर रहा था वो। आफ्टर स्पेंडिंग आवर हियर वी जस्ट क्लिक टू मेनी पिक्स एंड we just planning to go the seventh wonder, the Taj Mahal. The distance between the Agra Fort and Taj Mahal is around 3-4 kilometer, and the distance between the main gate of the Taj Mahal to the Taj Mahal is 1 kilometer, and this is the beautiful way to go Taj Mahal. On this road a wolf cart is also running, but that time we have no idea. We just think we have to go on our feet. Me just walking and make fun with my elder brother
and this is the way you can enjoy it as yourself. कुछ बोलना चाहेंगे? और मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग आ गए हैं आगरा के ताजमहल में। ताजमहल तो दिख ही नहीं रहा है। कुछ देर बाद ज़रूर आपको दिखेगा। हम भी खोज में हैं और भैया भी खोज में हैं। We are 7 people on the trip. After taking the ticket, this is the way to go inside the Taj Mahal. After the security check, we just going slowly to watch the Taj Mahal. We are very excited and this is the Taj Gate. यही वो ताज गेट है जिसके अंदर आपको जाने के बाद एक सफ़ेद कलर का सफ़ेद बिल्ली दिखेगी और ये कुछ तस्वीरें हैं ताज गेट की। ताज गेट भी मतलब ताजमहल जितना ही सुंदर था, बट ताजमहल की बात ही अलग है। ये काफ़ी बड़ा गेट था, शायद हाथी भी इस रास्ते जाता होगा, आई डोंट नो, जस्ट अ जोक। एंड उसके बाहर एक मैप भी था ताजमहल का कि कोई खो ना, जब से कोई खोता है नहीं। एंड everyone turns on their camera and we saw this beautiful heaven, the Taj Mahal. This is 82 meter long, the Taj Mahal. जो ताजमहल का ब्यूटी है उसको सनलाइट में देखने का अलग ही मज़ा है, बट आज हम लोग को वो मज़ा मिल नहीं पाया क्योंकि आज फॉग बहुत ज़्यादा था। फॉग की वजह से हम लोग को पहली बात तो ताजमहल क्लियर नहीं दिखा, क्लियर दिखा पास जाने के बाद इट क्लियर, बट फ़ोटोज़ दूर से बिल्कुल अच्छे नहीं आए। अगर आपके पास DSLR नहीं है आज टुडे, सो फ़ोटोज़ आपके नहीं आने वाले कैमरा में, क्योंकि फोकस आप पे लेगा कि ताजमहल पे लेगा। ये मैंने फ़ोटो क्लिक किया है, कितना ज़्यादा फॉगी फ़ोटो है। After clicking too many pictures here, we are decided to go back to our hotel because the Taj Mahal getting very foggy, and by tomorrow we have to move from Agra to Vrindavan, and this is the last view that I saw here. And with a very heavy heart, we are moving toward our hotel room from here. As the distance between Taj Mahal and the main road is 1 kilometer, we have to book this golf cart. और ये आगरा की ठंड भरी सुबह। हम लोग को आज ही वृंदावन के लिए निकलना है, तो उसके लिए हम लोग को जल्दी यहाँ से निकलना होगा। आगरा में हम लोगों ने 2 रूम ले रखे थे और यहाँ से हम लोगों ने चेकआउट किया, ब्रेकफास्ट किया और हम लोग यहाँ से बस से हम लोग यहाँ से वृंदावन के लिए निकल गए। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, इस नारे के साथ हम लोग वृंदावन में पहुँच चुके थे। वृंदावन में पहुँचने के साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे एक होटल भी बुक कर लिया। एंड एज यू सीन माई फादर डील विद द होटल मैनेजर फॉर द रूम्स। And just back from my father and brother, I am just sitting on the sofa and enjoy the moment. After the booking, we just checking in the hotel and I am going to give a little room tour. तो चलिए शुरू करते हैं रूम टूर। तो रूम में घुसते हैं इस दरवाजे के साथ। अगर ये दरवाज़ा नहीं होता तो हम लोग रूम में नहीं घुस पाते, और रूम में घुस जाते तो भाई बाहर नहीं निकल पाते। इस वजह से रूम में दरवाज़ा बहुत ज़रूरी था। टीवी था जिसका हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं किए, भाई घूमने आया, टीवी थोड़ी देखने आया है। एक मास्टर बेड था, एक छोटू बेड था, चेयर्स वगैरह थे और एसी भी था, बट ठंड का मौसम में भाई एसी क्या ही यूज़ होता। मैं एक बार चालू किया था बट बंद भी कर दिया। तो यही था कुछ छोटा सा रूम। आफ्टर टेकिंग लिटिल मील वी आर गोइंग टू स्पेंड आवर डे। वृंदावन में हम लोग दिन का शुरुआत किए बांके बिहारी जी के साथ। सबसे पहले हम लोग गए बांके बिहारी टेम्पल। That's what I record from my camera. Now we decided from here
to go and visit the Prem Mandir. The distance between the Bake Bihari temple and the Prem Mandir is around 4 km, and this is the beautiful way to go inside the Prem Mandir. It's evening 6 p.m. and we just reached the Prem Mandir main gate, and the rush you saw is just two-thirds of the Bake Bihari. And I clicked so many pictures, so many beautiful pictures as you seen. And from here, sorry I can't describe the beauty of this temple from my words. And at the back of the temple, the management of the temple organized this beautiful water show. Here I tried to capture the beauty of the temple in my camera. And this is will be my best selfie in 2024. Just from the exit of the temple, some people are dancing on the song Hare Rama and Hare Krishna. The vibe is very different. And this is 8 p.m. in the evening. We decided to do our dinner and go back to our hotel. Video camera. You are in the Nigarani of my camera. Say hello. Say hi. Say hi. Radhe Radhe. Radhe Radhe. And this is what we spent our day third here. चौथे दिन की शुरुआत होती है और आज हम लोग को जाना है इस्कॉन मंदिर और माँ वैष्णो देवी। आज के दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी क्योंकि आज धूप हुई थी। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इस्कॉन मंदिर की तरफ। ये जो आप लोग रोड व्यू देख रहे हो ये इस्कॉन मंदिर का ही है। अभी सुबह के बज रहे थे 10 और हम सभी लोग यही सुबह सुबह बिना ब्रेकफास्ट के आ गए थे। The photography and videography is not allowed inside the temple, but from outside I took some pictures and some clips.
After the breakfast, we just moved from Vrindavan to माँ वैष्णो देवी धाम। हम लोग वृंदावन से ब्रेकफास्ट करके 2 बजे हम लोग निकल गए थे, लेकिन मंदिर खुलने का समय ही 4 बजे था। तो हम लोग माँ वैष्णो देवी धाम आकर 2 घंटे इंतज़ार किए और ये कुछ इंतज़ार का फल है। मैं और मेरा पूरा परिवार माँ वैष्णो देवी धाम के अंदर प्रवेश कर चुका था। जैसा कि मैंने बताया, मंदिर खुलने का समय 4 बजे है, तो हम सभी लोग 4 बजे ही मंदिर में एंट्री ले चुके थे। और आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, सिर्फ हम ही लोग नहीं थे जो इस मंदिर में प्रवेश किए थे 4 बजे। हमारे साथ सैकड़ों लोग की भीड़ थी और ये सभी लोग माँ वैष्णो देवी के आशीर्वाद लेने आए थे। मैंने वहाँ कुछ अपनी तस्वीरें भी ली, क्योंकि यहाँ फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों अलाउड थे। और यहाँ सभी लोग माँ वैष्णो देवी धाम में प्रवेश करते हुए। माँ वैष्णो देवी के इतने बड़े प्रतिमा के नीचे माँ वैष्णो देवी का मंदिर भी था, जिसके अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर में प्रवेश करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं माँ वैष्णो देवी के मूर्ति के सामने। तो यही है हमारी माँ वैष्णो देवी। एंड दिस इज़ वॉट वी केम फॉर। आई टुक मैनी पिक्चर्स एंड एंजॉय अ लॉट। यहाँ माँ वैष्णो देवी के अलावा भी बहुत सारी देवी और देवताओं का मूर्ति बना हुआ था। मंदिर से बाहर आने के बाद हमने थोड़ी देर किया फोटोग्राफी और मुझे लिटरली पता नहीं था कि हम लोग एकदम माता जी की प्रतिमा के पास भी जा सकते हैं। तो अभी हम लोग गुफा की मदद से हम लोग माता जी की प्रतिमा में भी जा रहे हैं। ये गुफा लिटरली ओरिजिनल जो माँ वैष्णो देवी है उस तरह डिज़ाइन किया गया, आर्टिफिशियली गुफा है। और इसमें चारों तरफ बस गाने चल रहे थे, केवल भजन चल रहे थे और सभी लोग, सभी भक्त माता जी के पास जा रहे हैं। गुफा के अंदर ही अंदर कई सारे देवियों और देवताओं के मूर्तियां बनाई गई थी। हम लोग माँ वैष्णो देवी का नाम लेते रहें और ऊपर बड़ी जो प्रतिमा है उसकी तरफ चलते रहें। काफ़ी देर लगातार चलने के बाद अब ऐसा महसूस हो रहा था कि हम लोग माँ वैष्णो देवी के बड़े प्रतिमा के पास पहुंच चुके हैं।
माँ वैष्णो देवी का चढ़ाई करके हम सभी लोग सबसे ऊपर आ गए हैं और एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद, मतलब एक राउंड लेने के बाद, दूसरी तरफ से गुफा की मदद से ही एक एग्जिट भी था। यहाँ पे आने के बाद हम सभी लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा था। आफ्टर completing one परिक्रमा of माँ वैष्णो देवी, we just came down by the exit and took some pics. And after spending an hour here, we went back to our hotel room. And the fountain show of the temple also began, and it's look very nice. And this is the exit of the temple. And after spending the whole day, we just back to our hotel room in the Vrindavan. This is our day 5 in Vrindavan. Today we have to visit the Mathura and Gokul, and this is my final outfit. और आउटफिट तो क्या ही दिखाना, ऊपर से जैकेट जूकेट पहन लेना है। और आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हुआ था, बहुत ज़्यादा फॉगी मौसम हुआ था। एंड फिर भी हम लोग को जाना था आज सबसे पहले मथुरा। तो हम लोग वृंदावन से मथुरा कुछ 15 किलोमीटर का रास्ता है, तो सफ़र तय करके हम लोग आ जाते हैं मथुरा। मथुरा में सबसे पहले हम लोग आते हैं द्वारिकाधीश टेम्पल, और ये है कुछ द्वारिकाधीश टेम्पल का फुटेज। द्वारिकाधीश मंदिर का हम लोग आशीर्वाद लेके अभी हम लोग को जाना है यहाँ से श्री कृष्ण जन्मस्थल। अभी हम लोग श्री कृष्ण जन्मभूमि में प्रवेश कर चुके हैं। पीछे आप लोग कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क देख रहे हैं, वो श्री कृष्ण जन्मभूमि का मेन गेट का कंस्ट्रक्शन वर्क था। फ़ोन अंदर अलाउड नहीं था, फ़ोन के बिना ही हम लोगों ने मंदिर के अंदर किया प्रवेश और काफ़ी आनंद आया। और ये मंदिर की मैंने बाहर से ही कुछ तस्वीरें ली हैं। और यहाँ से अभी हम लोगों को जाना है गोकुल की तरफ। मथुरा से गोकुल जाने के बीच हम लोगों को मिला ये यमुना नदी। इस नदी के ऊपर ब्रिज था जिस पे हम लोग अभी खड़े हैं, और एक डैम जैसा भी बना हुआ था वहाँ पे। और अभी हम लोगों का प्रवेश हो चुका है इस गोकुल नगरी में। गोकुल ये वही जगह है जहाँ श्री कृष्ण जी अपना बचपन बिताए थे। ये गोकुल की वही सारी गलियाँ हैं जहाँ श्री कृष्ण जी अपना बचपन बिताए थे। हमारे साथ एक भैया थे जो कि यहाँ का इतिहास बता रहे थे। सबसे पहले उन्होंने ये यशोदा कुंड दिखाया। यहाँ यशोदा माँ श्री कृष्ण के कपड़े धुला करती थी। और वो भैया ने बताया ये वही पेड़ है जहाँ श्री कृष्ण जी इस पे बैठ के बांसुरी बजाया करते थे। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और प्रवेश किए नंदगांव में। नंदगांव में प्रवेश करते ही हम लोगों को मिला ये नंद द्वार। नंदगांव में आने के बाद सबसे पहले भैया ने दिखाया ये शिव मंदिर। यहाँ पे शिव जी ने तपस्या की थी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। नंद घर आनंद भाइयों जय कन्हैया लाल की राधे राधे बोलते हुए भैया ने हम लोगों को श्री कृष्ण के असल घर में लाया, जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी वो सारी बदमाशियाँ की थी। इस घर में एक मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण को पालने में झुलाया जाता है। वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। हमने श्री कृष्ण के असल घर में कुछ तस्वीरें भी ली थी जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। हम लोगों का प्लान था कि गोकुल से निकल के आज ही के दिन हम लोग दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन वहाँ के कुछ लोगों ने बताया यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, आप लोग वहाँ जाइए। तो हम लोग यहाँ पे भी आ गए। यहाँ आने के बाद सबसे पहले तो एक रिवर पॉइंट था जहाँ पे हम लोगों ने कुछ अपनी तस्वीरें ली, और तस्वीरें लेने के बाद हम लोगों ने मंदिर में दर्शन किए।
मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग का प्लान हुआ कि हम लोग आज ही दिल्ली जाते हैं। This is our day 6 in the city Delhi. Today we plan to go Akshardham temple, and this is the beautiful road to go Akshardham temple. This is my first time to visit Akshardham, and we just reached the temple Akshardham. दिल्ली में काफ़ी दिन से धूप नहीं हुई थी, लेकिन ये हम लोगों का पहला ही दिन था दिल्ली में और काफ़ी अच्छी धूप हुई थी। अगर धूप नहीं होती तो जैसे हम लोग को ताजमहल फॉगी दिखा था, तो ये भी मंदिर हम लोग को काफ़ी ज़्यादा फॉगी दिखता। और यहाँ पे हम लोग वाटर शो वगैरह देख के हम लोग निकल गए थे। यहाँ पे भी फ़ोन अंदर अलाउड नहीं था, इस वजह से वीडियोग्राफी मैं नहीं कर पाया। और यही रहा कुछ दिल्ली का पहला दिन हम लोगों का। सिर्फ आज हम लोग अक्षरधाम टेम्पल विजिट किए। That's it. Today, the day 7 and the day last of our trip. We just going toward Lajpat Nagar for shopping. The Lajpat Nagar is just like the Sarojini market. This is a shopping hub where all items on sale. And this is what we waste our full day in just shopping. We take metro from Lajpat Nagar to come back to home. और यही रहा हम लोगों का ये 7 दिन का ट्रिप। मैंने ये पूरा ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखा है और होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड दैट्स इट।